Hello student, myself Bharat Pandey. Today I am going to start exercise 1C. Exercise 1C is based on the word problem, and our first question is the number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last two consecutive years was 1 crore 37 lakh 89,509 and 1 crore 29 lakh 76,498 respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? According to the question, that some people went Mata Vaishno Devi during last first year 1 crore 37 lakh 89,509 माने पहले साल माता वैष्णो देवी के मंदिर 1 crore 37 lakh 89,509 पर्सन गए एंड नेक्स्ट ईयर 1 crore 29 lakh 76,498 पर्सन गए। आपको बताना है कि इन 2 सालों में कितने लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर घूमने गए। We have to find the total number of the person. We add the both number. First we write in our copy. First we write in our notebook in the first step number of persons who visited the holy shrine in first year. पहले हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नंबर राइट कर लेंगे। Number of persons who visited the holy shrine in the first year is equal to 1 crore 37 lakh 89,509 and in the second year 1 crore 29 lakh 76,498. Now find the total number of persons. We write here number of persons visited the shrine during these 2 years. We add first number and second number. 9 plus 8 17 7. We write 1 as carry. 9 plus 1 10 10 we write 0 1 carry. 5 plus 4 9 we write 0 1 carry. 9 plus 6 15 15 and 1 16. 8 plus 7 15 15 plus 1 16 6 carry 1. 9 plus 7 16 16 plus 1 17 carry 1. 3 plus 2 5 5 plus 1 6 1 1 2. 2 crore 67 lakh 66,007 persons went in the Mata Vaishno Devi shrine in these 2 years. That is our answer. Our next question is question number 3rd. Second question we will solve in the homework according to first question. Our next question is a number exceeds 3 crore 76 lakh 84,955 by 36 lakh 15,045. What is that number? कोई नंबर है 3 crore 76 lakh 84,955 जो ज़्यादा हो जाता है। एक्सेट्स मतलब ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना? 36 lakh 15,045। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो हमें न्यू नंबर फाइंड करना है और न्यू नंबर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो वी राइट इन आवर नोटबुक न्यू नंबर इज इक्वल टू वी ऐड द बोथ नंबर 3 crore 76 lakh 84,955 36 lakh 15,045. We add the both number 5 plus 5 10 0 carry 1 5 plus 4 9 9 and 1 10 0 carry 1 9 plus 1 10 0 carry 1 5 plus 4 9 9 plus 1 10 carry 1 8 plus 1 9 9 plus 1 10 we write 0 carry 1 6 plus 6 12 12 plus 1 13 3 carry 1 7 plus 3 10 10 plus 1 11 1 carry 1 3 plus 1 4.
our new number is 4,13,000. 4,13,000 is our new number. Now question number 4. Question number 4 is, there were 3 candidates in an election. They received 6,87,905 votes, 4,95,086 votes and 93,756 votes respectively. The number of invalid votes was 13,849. If 25,467 person did not vote, find how many votes were registered. According to the question, किसी इलेक्शन में तीन कैंडिडेट्स को वोट्स मिला। पहले कैंडिडेट ने 6,87,905 वोट्स पाए, सेकेंड कैंडिडेट ने 4,95,086 वोट्स मिले और थर्ड कैंडिडेट को 93,756 वोट्स मिले। और इनवैलिड वोट्स मीन्स जो वोट खराब हो जाते हैं, यानी जो वोट सही नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड वोट्स। तो इनवैलिड वोट्स जो हैं वो 13,849 हैं और 25,467 पर्सन ने वोट नहीं डाले। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ द वोट्स कितने हैं और फाइंड हाउ मेनी वोट्स वेयर रजिस्टर्ड, यानी कितने वोट्स रजिस्टर्ड थे। तो हमें रजिस्टर्ड वोट्स की संख्या निकालने के लिए, नंबर्स निकालने के लिए वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर। फर्स्ट वी write total number of votes received by 3 candidates is equal to 6,87,905, 4,95,086, 93,756. We add the 3 numbers. 6 plus 6 12, 12 plus 5 17, 7, 8 plus 13 plus carry 1 14. We write 4 carry 1, 9 plus 7 16, 16 and 1 17 carry 1, 9 plus 7 16, 16 plus 1 17, 7 carry 1, 7 plus 5 12, 12 plus 3 15, 15 plus 1 16 carry 1, 9 plus 9 18, 18 plus 8 26, 26 and 1 26 plus 1 27 carry 2, 6 plus 4 12, 6 plus 4 10, 10 plus 2 12. The 3 candidates received 12,76,747 votes. Now number of invalid votes. Number of invalid votes is equal to 13,849. Number of persons who did not vote 25,467. Now we write to find the total number of votes registered. So total number of registered votes is equal to total number of registered votes find करने के लिए हम 3 कैंडिडेट्स ने जितना वोट्स पाया, इनवैलिड वोट्स और पर्सन्स हु डिड नॉट वोट, इन तीनों नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे। तो वी राइट हियर 12,76,747, 13,849, 25,467. We add the 3 numbers. 7 plus 7 14, 14 plus 9 23, 3 carry 2, 4 4 8 2 10 and plus 6 16, 6 carry 1, 8 plus 7 15, 15 plus 4 19 and 1 10 carry 16, 8 plus 7 15, 15 plus 4 19 and plus 1 20, 0 carry 2, 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 5 16, 6 carry 1, 7 plus 1 8, 8 plus 2
10, 10 and 1, 11. 1 carry 1, 2 1, 3 and 1. We write 1. Then total number of votes registered 13 lakh 16,063. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. 13 lakh 16,063 is our answer. Now our next question is question number 7, and which question I am leaving that you will solve in the homework according to the given question. जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब उसी पे बेस्ड है, उसी की तरह आपको सॉल्व करना है, इसलिए हम उससे को छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग उसको होमवर्क में करेंगे. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज 2 crore 9 lakh 56,480. Next year it increased by 67 lakh 9,570. What was the total sale receipt of the company during these 2 years? According to the question, the sale receipt of the company during a year was 2 crore 9 lakh 56,480. किसी कंपनी द सेल रिसिप्ट माने किसी कंपनी का सेल रिसिप्ट जो है पहले ईयर 2 crore 9 lakh 56,480 है. नेक्स्ट ईयर बढ़कर ये 67 lakh 9,570 हो जाता है. तो व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी, यानी आई मीन फर्स्ट ईयर और जो बढ़ गया है, जो ज़्यादा हो गया, इंक्रीज मतलब ज़्यादा हो जाना, तो जो ज़्यादा हो गया है दोनों को मिलाकर टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर क्या होगा. तो हमें टोटल सेल रिसिप्ट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से इन दोनों नंबर्स को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा. तो वी राइट इन आवर नोटबुक फर्स्ट सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में सेल रिसिप्ट कितना था, 2 crore 9 lakh 56,480. सेकेंड ईयर में कितना था, सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी फर्स्ट ईयर में सेल रिसिप्ट कंपनी का था 2 crore 9 lakh 56,480. और सेकेंड ईयर में ये और बढ़ गया, कितना बढ़ गया था, 6 ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 67 lakh 9,570 और बढ़ गया सेकेंड ईयर में. तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हमें फर्स्ट ईयर के नंबर को और जो ज़्यादा हो गया है उसको हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो 0 + 0 0, 8 + 7 15, 5 + 4 9, 9 and 1 1 कैरी 10. 0 10 का क्या राइट करेंगे यहाँ पर 0, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा. 9 + 6 15, 15 + 1 16, कैरी 16 का 6, कैरी 1, 5 + 1 6, 9 + 7 16, 6 कैरी 1, 6 + 1 7, कैरी नॉट कैरी, बिकॉज जहाँ पे 2 डिजिट आता है वहीं पे आप क्या राइट करते हैं, कैरी. And in last we write 2. Now we find the total number of sale receipt. We have to add the number of first year and second year. In the first year, the number of sale receipt is 2 crore 2 crore 9 lakh 56,480. And in the second year, 2 crore 76 lakh 66,050. So we have to find the total number of receipt. We add the both number of first year and second year. So we write in our notebook total number of sale receipt of the company
ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। तो 2 ईयर्स के सेल रिसिप्ट की संख्या निकालने के लिए हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को ऐड करना होगा। तो वी ऐड द बोथ नंबर, 0 + 0 0, 8 + 5 13, कैरी 1, 4 + 1 5, 6 + 6 12, 12, 2 कैरी 1, 5 + 6 11, 11 + 1 12, 2 कैरी 1, 9 + 6 15, 15 + 1 16, carry 1, 7 + 1 8, 2 2 4. The total number of cell received during these 2 years is equal to 4 ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 4 crore 86 lakh 22,530. That is our answer. In the homework, you will solve question number 2, 5, 6, 8, 9 and 10 from exercise 1C. Okay, thank you. Student, myself Bharat Pandey. Today I will tell question number 11 of exercise 1C. Our question number 11 is, what number must be subtracted from 1 crore 10 lakh 10,101 to get 26 lakh 35,967. I repeat again, what number must be subtracted from 1 crore 10 lakh 10,101 to get 26 lakh 35,967. इट्स मीन कि हम 1 करोड़ 10 लाख 10,101 में से क्या माइनस कर दें कि हमें 26 लाख 35,967 मिल जाए। टू गेट मतलब प्राप्त मिल जाए या प्राप्त हो जाए। टू फाइंड द नंबर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट we have to subtract 26,35,967 from 1 crore 10 lakh 10,101. So we write in our notebook, required number is equal to 1 crore 10 lakh 10,101 में से हम 26,35,967 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन द बोथ कंडीशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर वर्ड प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्ट करने के लिए आता है तो भी हम माइनस ही करेंगे, और ऐड करने के लिए आता है फिर भी हम माइनस ही करेंगे। देन वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट नंबर। 1 we carry 1 borrow from the next number 11, 11 minus 7 4, remainder 9, 9 plus 6 13, here 0. I will take 1 borrow again, 10, 10 minus 9 1, remainder 9, 9 plus 9 minus 5 4, 0. We take 1 borrow, so it will be 10, 10 minus 3 7, 9 minus 6 3, 0. We take 1 borrow from 1, 10, 10 minus 2 8. The required number is 83,74,134. I mean 83,74,134 must be subtracted from 1 crore 10 lakh 10,101 to get 26,35,967. I mean हम इस नंबर को 1 करोड़ 10 लाख 10,101 से माइनस कर देंगे तो हमें 26,35,967 मिल जाएगा। Our next question is question number
14. Question number 14 is, a society needed 1,85,36,000 टू बाई ए प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी को कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 1,85,36,000 रुपी चाहिए। इट कलेक्टेड 72,53,840 एज मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी से वो 72,53,840 रुपी कलेक्ट करता है। एंड टुक ए लोन, और बैंक से लोन लेता है कितने का? 56,75,450 56,75,450 रुपी वो बैंक से लोन लेता है। एंड डोनेशन एंड कलेक्टेड 29,37,680 एज डोनेशन, और डोनेशन से वो 29,37,680 रुपी कलेक्ट करता है। तो हाउ मच इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, माने सब रुपी कलेक्ट करने के बाद भी सोसाइटी को अभी और कितने पैसे की कमी हो रही है, यानी उसे और कितना पैसा चाहिए प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। देन फर्स्ट वी फाइंड हाउ मच रुपी is collected by society. Then in the first step we write the society needed to buy the property. सोसाइटी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो 1,85,36,000 1,85,36,000 रुपी जो है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए चाहिए। वो कितना पैसा कहाँ से कलेक्ट करता है? अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप 7,25,000 72,53,840 वो मेंबरशिप से कलेक्ट करता है। फ्रॉम बैंक 56,75,450 रुपी वो बैंक से लोन लेता है। एंड कलेक्टेड एज डोनेशन से वो 29,37,680 रुपी वो कलेक्ट करता है। तो अब आपको पता करना है कि वो कितना पैसा अमाउंट इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, माने सोसाइटी को अब भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कितने और पैसे की आवश्यकता होगी। तो हम द अमाउंट इज नीडेड टू बाई द प्रॉपर्टी में से हम जो पैसा उसने कलेक्ट किया है इन तीनों को प्लस करके हम उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वी राइट फर्स्ट 1,85,36,000 माइनस, और ब्रैकेट में हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ओके, तो ऐड करने पर कितना हुआ? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,58,66,977। अगर हम तीनों नंबर को ऐड करते हैं तो अगर आप रब पे ऐड करना चाहिए तो रब ऐड कर लीजिए, और आप कॉपी के साइड में लाइन ड्रा करके रब कर सकते हैं। तो हम नाउ वी सब्ट्रैक्ट 1,58,66,970 फ्रॉम 1,85,36,000 में से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 0 माइनस 0 0 0 इज लेस देन 7, वी टेक बारो फ्रॉम 6 10 10 माइनस 7 3, रिमाइंडर 9 9 माइनस 9 0, 15 5, वी टेक 1 फ्रॉम 3 15 15 minus 6 9, remainder 2 we take 1 borrow from 5 12 12 minus 6 6, now remainder 4 we take 1 from 8 14, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 minus 8 6, 7 as a reminder 7 minus 5 2, 7 minus 5 2, 1 minus 1
जीरो, जीरो हम नहीं राइट करते हैं। सो आवर आंसर इज 26,69,030 रुपी उसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर भास्कर सेव्स 8,756 एवरी मंथ। मिस्टर भास्कर जो हैं, मिस्टर भास्कर सेव्स 8,756 एवरी मंथ, माने प्रत्येक महीने मिस्टर भास्कर 8,756 रुपी क्या करते हैं, बचाते हैं। तो हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर, तो 13 ईयर में वो कितने रुपए बचाएंगे। तो आप जानते हैं कि 1 ईयर हैज़ 12 मंथ, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हमें आंसर किस में निकालना है, क्योंकि वो एवरी मंथ 8,756 निकालते हैं, तो इसलिए हम ईयर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उससे हम 8,756 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी राइट इन आवर नोटबुक amount saved by Mr. Bhaskar in 1 month 8,756। amount saved in 156 कहाँ से आया, हमने 13 में 12 से क्या किया है, मल्टीप्लाई। जब 12 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कन्वर्ट इन द मंथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 156 मंथ। अब 156 मंथ को हम 8,756 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8,756 मल्टीप्लाई 156, 6 से पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 156 का टेबल तो आता नहीं है, इसलिए 1 बाई 1 हम 6, 5 एंड 1 से नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 3 कैरी 33, नेक्स्ट 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 कैरी, अगर आप ऊपर लिखना चाहिए तो राइट कर सकते हैं। 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45 कैरी 4, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52। एज ऑन 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 30 का हम कितना राइट करेंगे, 0। और हाँ, नेक्स्ट नंबर से करते समय हम एक डिजिट आगे से राइट करते हैं, और फिर अगर थर्ड नंबर से करेंगे फिर एक डिजिट हम छोड़ देंगे। तो 5 6 जा 30, 0, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 5 7 जा 35 एंड 2 37, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43। 3 कहाँ से आया था, कैरी से। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई द नंबर बाई 1। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर सब आ जाते हैं, क्योंकि 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8। नाउ वी ऐड द नंबर 6 3 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19 कैरी 1, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 कैरी 1, 5 प्लस 3 8, 8 एंड 1 9, 9 प्लस 7 16 कैरी 1, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। 1 कहाँ से आया था, कैरी से। तो 13 मिस्टर भास्कर सेव्ड इन 13 ईयर 13,65,936। तो वी राइट दस मिस्टर भास्कर विल सेव रुपी 13,65,936 in 13 year. In the homework, you will solve question number 12, 13, 15, 16, 17, 18 and 20 from exercise 1C, and if you have any problem, you can ask me. Thank you.